أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 43 سے چند آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ سورہ نساء کی تفسیر اور درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 36 میں تقریباً 10 حقوق اللہ نے بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے، شرک بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی اہم عبادت جو تمام عبادتوں کی اگر کہا جائے ام العبادات یا تمام عبادتیں اس عبادت کے اندر جمع ہیں، وہ ہے نماز۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے نماز کا ادب، طریقہ اور نماز کی کچھ شرائط کہہ لیجئے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیسے نہیں، اس کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشے کی حالت میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور میں گھر پر گیا تھا تو وہ درس وہاں پر الحمدللہ ہم نے سیو کر لیا تھا، تو اس لیے انشاءاللہ وہ بھی عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی جب تم جنابت کی حالت میں ہو ولا جنوباً الا عابری، تو اس وقت بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ الا عابری کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف راستہ گزرنے کے لیے اگر مسجد میں یا کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ راستہ گزرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، گزر سکتے ہو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو اور تم مسافر ہو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو بہرحال اس آیت میں تیمم کے مسائل بھی بیان کیے گئے کہ 4 باتیں ہیں کہ جب تم تیمم کر سکتے ہو۔ سب سے پہلی چیز وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی کہ ماہر طبیب منع کر دے کہ پانی کے استعمال تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو ہلاکت کا، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو اور آس پاس کوئی بتانے والا بھی نہیں، یا پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، یا پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے، یا کوئی درندہ ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ یعنی قضاء حاجت سے آئے، تو
تو اس زمانے میں چونکہ عام طور سے بیت الخلا گھروں میں نہیں ہوتے تھے اور لوگ دور دراز جنگلوں میں نشیبی جگہ تلاش کر کے نکل جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو اس اعتبار سے قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اور یا تم نے عورتوں سے مجامعت کی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مطلقاً لفظ لمس مطلقاً چھونے کے معنی میں لیتے ہیں، اور ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت کو چھو دے تو اس چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو بڑی دشواری پیش آئے گی، لمس کے معنی یہاں پر چھونا نہیں بلکہ جماع مراد ہے، اور حدث اکبر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حدث اکبر کی حاجت ہو جائے اور پانی نہ ملے تو اس وقت تیمم کی اجازت ہے۔ دلائل اپنے اپنے مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال فرمایا او لامستم النساء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور حجرہ بہت تنگ ہوتا تھا، جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پیروں پر آپ ہاتھ لگا دیتے تو میں پیر سکوڑ لیتی تھی، تو پتہ ہی چلا کہ اگر وضو ٹوٹ جائے اس طرح چھونے سے تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوگی، بڑی دشواری پیش آ جائے گی، اور حج کے موقع پر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنا رش ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مٹی کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر چاہے مٹی نہ لگی ہوئی ہو، جیسے پتھر ہے یا اور مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہیں، اگر مٹی لگ جائے تو ہاتھ کو جھاڑ لے یا پھونک مار دے، اور ایک ضرب مار کر کے اپنے چہرے پر اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں پر، یہ غسل اور وضو دونوں کا، حدث اصغر اور اکبر دونوں کا طریقہ ایک ہی تیمم کرنے کا۔ تو جنوبی حالت جب حالت جنابت کے اندر ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور اس طریقے سے اس کو چاہیے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ یہاں پر تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ جانتے ہیں شاعر ہیں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنی کسی باندی کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر کے انہوں نے مجامعت کی، تو ان کی بیوی جب بیدار ہوئی اٹھی تو دیکھا کہ وہ تو باندی کے پاس ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا، جلدی سے کوئی چھری یا کوئی چاقو وغیرہ کچن وغیرہ میں رکھا ہوگا اس کو لے کر کے گئی۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس وقت تک فارغ ہو کر کے واپس آ گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کہاں پر تھے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کیوں، بات بتائیے کیا ہے، یہ چاقو کس لیے ہے؟ کہا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چونکہ عورتیں اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنی اس کے اندر کسی کی پارٹنرشپ یا شرکت کو برداشت کریں، آپ جانتے ہی یہ سوتنوں کا کیسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ باندیاں بھی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو حالت میں نے دیکھی ہے، اگر میں اس حالت میں دیکھی تو اس چاقو سے آپ کو اوپر مطلب وہ کرتی، یعنی اشارہ یہ کیا کہ میں آپ کو اس سے ایک طریقے سے نقصان پہنچاتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ اللہ کی بندی آپ نے کہاں دیکھا مجھے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے دیکھا آپ کو اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ قرآن ناپاکی کی حالت کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ دیکھیے اگر میں ناپاک ہوں تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی دیکھے پڑھتا ہوں، اور چند اشعار عربی زبان کے، چونکہ شاعر تو تھے، فی البدی چند اشعار پڑھ دیے۔ اب بیوی بیچاری یہ سمجھی کہ شاید یہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں، اور انہیں یقین آ گیا۔ تو بعض مرتبہ جو بیچاری ان پڑھ بیویاں ہوتی ہیں ان کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو کسی بھی طریقے سے تھوڑا بہت اگر وہ کر لیں تو وہ بات جلدی سے مان لیتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان جنوبی ہو تو حالت جنابت کے اندر پاک ہو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، پاک ہو کر کے ہی قرآن پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے احکام میں ڈھیل دے دی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ اس انسان کی جو ابتدا اور انتہا ہے وہ مٹی سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو ابتدا اور انتہا
दोनों इंसान की मिट्टी है, इसलिए दरमियान में भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल किलम व नुसिरतु बिर्रुअब व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व उहिल्लत लियल गनाइम। तकरीबन 6 चीज़ें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि मुझे तमाम नबियों पर फजीलत दी गई। उनमें से एक ये भी है कि मेरे लिए तमाम मस्जिद को, तमाम ज़मीन को पाक और साफ़ कर दिया गया। जहाँ चाहो वहीं पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लो, पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। पहली उम्मतों को ये सहूलतें नहीं थी। बहरहाल ये तयम्मुम का वाक़या भी मैंने वहाँ बयान कर दिया कि ये आयात चूँकि सूरह माइदा के अंदर भी जो रुकू नंबर 2 है उसके अंदर भी आयात आएंगी, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह इसका शान नुज़ूल आ जाएगा कि ग़ज़वे के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हार वो मांग कर के लाई थी, वो गुम हो गया। तो उसकी तलाश के अंदर थोड़ी देरी हुई और पानी था नहीं, काफ़िले वाले परेशान हुए, तो अल्लाह ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी। बहरहाल अब आगे देखिए, फरमाते हैं अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। यहाँ से अहले किताब की मज़म्मत अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, उनकी क़बाहत और शनाअत के अहले किताब इनको तो चाहिए ये था कि तौरात और इंजील के जानने वाले अहले इल्म हैं, पहली ही निगाह के अंदर इनको तो पैगंबर पर ईमान लाना चाहिए था और लोगों के सामने खुल कर के एतराफ़ करना चाहिए था। लेकिन इन ज़ालिमों ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि हक़ के रास्ते में रोड़ा बन गए और बजाय मानने के गुमराही को तरजीह देने लगे हक़ के मुकाबले में। इसीलिए कुरान ने फिर ऐलान किया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, ए नबी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। उलमा फरमाते हैं पहली आसमानी किताबें जितने भी हैं वो एक जुज़ की हैसियत रखती हैं और कुरान पाक मुकम्मल किताब की हैसियत रखती है। तो वो जुज़ कुरान पाक के अज्ज़ाही का एक हिस्सा है। इसलिए जब कुल नाजिल हो गया तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि इस कुरान ने हमारे नबियों की तस्दीक की, पहली आसमानी किताबों की तायीद की। तो कुरान पर ईमान लाना बेअैनिही ऐसा ही था जैसे पहले उन तमाम साबिका किताबों पर भी ईमान खुद ब खुद आ जाता। लेकिन वो लोग हठधर्मी के ऊपर तुल गए। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था। यश्तरून ज़लाला, वो गुमराही को ख़रीदते हैं यानी तरजीह देते हैं, हिदायत के मुकाबले में तरजीह देते हैं गुमराही को। वयुरीदून अन तदिल्लुस सबील, और ख़ुद ही गुमराह नहीं बल्कि दूसरों को भी इरादा करते हैं कि इनको भी सीधे रास्ते से बिचला दें, भटका दें। चुनांचे उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप देखेंगे इस्लामी तारीख़ पढ़ेंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान की दुश्मनी पर उतर आए, आपके ऊपर सहर किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश की गई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ़ तरीके से तकलीफ़ें पहुँचाने का मंसूबा उन्होंने बनाया। कभी आपको पर जादू किया और कभी आपको जहर देने की कोशिश की। ये सारे वाक़यात शाहिद हैं कि उन्होंने दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब आगे फरमाते हैं वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, ए मेरे महबूब अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। ये यहूदी हक़ के दुश्मन हैं, इसीलिए कुरान में जगह जगह फरमाया वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा, महबूब ये यहूद व नसारा आपसे राज़ी और खुश नहीं हो सकते। कहीं फरमाया ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि यहूद और मुशरिकीन तुम्हारे सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, कि इनको अपना दोस्त भी मत बनाओ, चूँकि इनकी दोस्ती तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान देगी। उसी को अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। और जब दुश्मनों को जानता है तो अब आप ऐसा नहीं कि बस अपना कार्य नबूवत छोड़ करके उन्हीं के उसमें लग जाएं कि भाई मुझे इनकी दुश्मनी से कैसे बचना है। अल्लाह ने फरमाया ये काम हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं,
آپ کے خلاف سارا جہان بھی کھڑا ہو جائے تو بھی آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور ولی کے، بطور حمایتی کے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور بطور مددگار کے بھی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دائیں بائیں کبھی سیکورٹی گارڈ یا کبھی اس طرح کی فوج چلتی ہو کہ بھئی آپ کو حفاظت محافظ، صحابہ ادب کی وجہ سے کر لیں تو الگ بات ہے، باقی قرآن پاک میں تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ تنہا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے اور مدینے کے اطراف میں گھوم کر کے آ جاتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ دشمن آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام تنہا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے پورے مدینے کا چکر لگا کر کے خود آ جاتے تھے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آگے یہود کی کچھ اور مزید شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہود کے اندر ایک مرض یہ بھی تھا کہ ایک تو یہ حق بات کو چھپاتے تھے، کتمان حق، جس کی مذمت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے یہود کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ یہ بات کو عدلتے بدلتے تھے، تحریف لفظی اور معنوی دونوں کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے ہاتھ سے انٹرفیئر کرتے تھے کتابوں میں اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اسی طریقے سے ان کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ یہ بڑے گستاخ، اور اگر یوں کہا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین، مذاق، تمسخر بھی کرتے تھے، آپ کی مجلس میں آ کر کے اس طرح کے کلمات کہتے جو دو معنی پر مشتمل ہوتے، ایک صحیح معنی اور ایک غلط معنی، اور پھر وہ غلط معنی مراد لے کر کے ہنستے تھے کہ دیکھو مسلمان یہ سمجھتے ہی نہیں، اور اگر یہ صحیح نبی ہوتے تو ہماری باتوں کو پکڑ لیتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تحمل سے، برداشت سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی نے آ کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سام کے معنی تم پر موت آئے، یہ بددعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم، جو تم نے مجھے کہا ہے وہ تم پر واپس لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن نہیں تھی، بھڑک گئی، بہت غصے میں کہا یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، تو نبی کو بددعا دیتا ہے، وعلیک السلام، موت تجھ پر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، بڑی غصے کے اندر ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ یہودی آپ کو بددعا دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی بددعا سن لی اور میں نے اس کو جواب بھی دے دیا وعلیکم کہہ کر کے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ سن چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، وہاں پر پوری اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے صحابہ تم بھی ان یہودیوں کے چکر میں آ کر کے ان کی بولی بول رہے ہو، یہ تو گستاخی کی وجہ سے اس طرح کے جملے کہتے ہیں، تو آپ سیدھے سادھے صحابہ ہیں، اس لیے آپ یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ تو تین طرح کے لفظ کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب پیغمبر کی مجلس میں آتے تو کہتے تھے سمعنا، لیکن آہستہ سے کہہ دیتے تھے عصینا۔ سمعنا کا مطلب سن لیا، لیکن عصینا بات نہیں مانیں گے، یہ ہے گستاخی۔ یا بعض علماء نے فرمایا ہے سمعنا کہہ کر کے کہتے تھے سن لیا، اور عصینا کہتے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ دوسروں کی بات آپ کے مقابلے میں نہیں مانیں گے، لیکن مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ ہی کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے صحابہ کی مجلس میں پیغمبر کے سامنے آ کر کے کہتے تھے اسمع، بھائی سن، یعنی غور سے سنو، اور آگے کہتے تھے غیر مسمعین۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو کوئی ناگوار بات سننی نہ پڑے، اور دوسرا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کرے آپ کی بات سننے کے لائق ہی نہ ہو، یا آپ سننے کے لائق نہ رہیں، غیر مسمعین۔
तो मुराद इससे बद्दुआ लेते थे। इसी तरह एक लफ्ज़ बोलते थे राईना, ए हमारे चरवाहे, या अहमक और बेवकूफ़ के माना में उनकी ज़बान पर ये लफ्ज़ उनकी भाषा में आता था यहूद की, तो ज़बान तोड़ मोड़ करके गुफ्तगू करते थे। कुरान ने तीनों की इस्लाह की कि इनको चाहिए था समीअना व असैना के बजाय समीअना व अताना कहते। इनको चाहिए था इस्मा कहते, गैर मुस्मईन कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनको चाहिए कि राइना का लफ्ज़ छोड़ करके उन्जुरना कहते, ये इनके हक़ में बेहतर होता, और ये ऐसा लफ्ज़ होता कि जिसके अंदर कोई खलजान, कोई दूसरे माना का इश्तिबा है ही नहीं। इसीलिए कुरान पाक ने कहा कि मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, यहूद में से बाज़ वो लोग हैं जो बात को उसके मकाम से हटा देते हैं, यानी तहरीर लफ्ज़ी और मानवी के आदी हैं ये लोग। वयक़ूलून समिअना व असैना, और कहते हैं हमने सुना और नहीं मानेंगे। वस्मा गैर मुस्मईन, और कहते हैं कि सुन और न सुनी जाए तुम्हारी बात। और आगे फरमाया व राइना, और कहते हैं राइना लय्यम बि अलसिनतिहिम, अपनी ज़बान को मोड़ कर, यानी राइना। व तानन फिद्दीन, और दीन में ऐब लगाने के लिए। वलौ अन्नहुम क़ालू, अब अल्लाह फरमाते हैं कि इनके बजाय अगर ये यूँ कहते, वलौ अन्नहुम क़ालू, और अगर ये लोग यूँ कहते समिअना व अताना, सुन लिया और हम मानेंगे, वस्मा, और सुन, और बजाय रायना के कहते वंजुरना, और हम पर नजर सानी फरमाइए, यानी हमारी बात समझ में नहीं आई, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। लकान खैरल लहुम, तो इनके हक में बहुत बेहतर होता, व अक़वम, और बहुत ज़्यादा दुरुस्त होता। मकसद ये है कि अगर ये इस तरह की सीधी सच्ची बात करते तो ये इनके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दूसरों को खदशे से, नुकसान से बचाने के लिए ज़्यादा बेहतर होती। आगे फरमाया वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर इनके कुफ्र की वजह से लानत, लानत कहते हैं रहमत से दूर कर देना। इसीलिए फरमाया कि किसी मुसलमान को किसी पर लानत नहीं भेजनी चाहिए, किसी मुसलमान पर, इसलिए कि वो लानत पहले आसमान की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे बंद, फिर वापस लौट करके ज़मीन की तरफ आती है। अगर वो कहने वाला मुस्तहिक है तो ठीक, वरना तो ये लौट करके उसी पर आ जाती है जिसने लानत भेजी है। फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला, सो ईमान नहीं लाएंगे मगर बहुत कम। चुनांचे यहूद में से, अहले किताब में से बहुत ही कम लोग ईमान लाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कहा कि देखो ये तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, लेकिन हम तुम्हें ईमान लाने का एक चांस देते हैं, मौका देते हैं। जिस तरह हकीम पहले बीमारी को वाज़ेह करता है, उसके बाद फिर दवाई तजवीज़ करता है, और अगर दवाई को सही इस्तेमाल न करे तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट, नुकसान भी बताता है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ईमान लाने का हुक्म दिया कि चलो ये तुम्हारी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ तंबीह भी कर दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो तुम पर अल्लाह का अजाब आ सकता है, तुम्हारे चेहरे मस्ख हो सकते हैं, बिल्कुल प्लेन, जिस तरह पीछे से गुद्दी होती है ना, इसी तरह सामने से तुम्हारे मतलब नाक, कान, होठ ये ख़त्म करके जिस तरह गुद्दी है, आगे से भी ऐसा कर दें, और तुम्हारा चेहरा आगे की तरफ फेरने के बजाय पीछे की तरफ कर दें, कि छाती आगे की तरफ और पूरा चेहरा पीछे की तरफ, यानी ये इहानत मकसूद है, ज़िल्लत। या तुम पर ऐसे लानत भेजें जैसे अस्हाबुस सब्त, जिनका जिक्र सूरह बकरा में आ चुका है और सूरह आराफ में भी आएगा, कि एक समंदर के किनारे पर कुछ यहूदी रहते थे और वो मछली का शिकार करते थे। हफ्ते के दिन उनको मछली का शिकार करने से मना किया गया था, तो उन्होंने हीले बहाने शुरू कर दिए और थोड़ी छोटी नालियां बना करके तालाब और हौज़ की शक्ल बना ली, और फिर बीच में से बंद कर देते और आइंदा अगले दिन मछली पकड़ लेते थे। तो 3 जमातें वहाँ पर हो गई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफरमानों को, जो उनमें से जवान थे उनको बंदर, और जो बूढ़े थे उनको खिंजीर बना दिया। तो ये धमकी भी साथ साथ उनको दी जा रही है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए किताब वालो,
आमीनू ईमान लाओ बिमा नज़्ज़लना, उस चीज़ पर जो हमने नाजिल की, यानी कुरान पर और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान पर। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये कुरान तस्दीक करता है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। नबी भी तस्दीक करता है, कुरान ने भी कभी तकज़ीब नहीं की, आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। किससे पहले पहले? मिन क़ब्ल अन नतमिसा वजूहन, इससे पहले पहले कि हम मिटा डाले बहुत से चेहरों को, यानी चेहरों को मस्क कर दें। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, या उनको उल्टा दें उनकी पीठ की तरफ, गुद्दी की तरफ। औ नलअनहुम, या हम उन पर लानत करें, कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, जैसे कि हमने लानत की अस्हाबुस सब्त वालों पर। यह अस्हाबुस सब्त का वाक़या उनमें के दरमियान ऐसे ही मशहूर था जैसे मुसलमानों के दरमियान ग़ज़वा बदर, उहद, ये वाक़यात बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। ऐसे ही यहूद की तारीख़ में अस्हाबुस सब्त का वाक़या बड़ा फेमस और मशहूर था। तो अल्लाह ने उसकी तरफ इशारा किया कि जैसे उनको हमने बंदर और खिंजीर बनाया, इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी पकड़ आ सकती है। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म तो होकर ही रहता है। अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा कर ले उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने धमकी भी दी और साथ साथ ईमान लाने के लिए उनको कहा कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, इनके बारे में आता है कि ये तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सामने मुसलमान हो गए थे, और इनका वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब ये नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए तो फरमाते हैं, खुदा की कसम जैसे ही मैंने पैगम्बर के चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी, इन हाज़ल वजह लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और सबसे पहले मेरे कानों ने जो बात सुनी वो ये था, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम व सिरुल अरहाम व सल्लू बिल्लैल वन्नासु नयाम। 4 बातें आपने इरशाद फरमाई, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलाम को आम करो, और दूसरे नंबर फरमाया सिला रहमी करो, दस्तरखान वसी करो, और चौथी बात इरशाद फरमाई तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो औ नलअनहुम, अब उलमा ये फरमाते हैं कि क्या उन पर ये अजाब आया या सिर्फ ये धमकी थी? तो मुख्तलिफ तौजीहात की गई हैं। सबसे बेहतर जवाब हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि असल में उनको डराया गया और धमकी दी गई। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस अजाब का आना उन पर दुनिया में कोई ज़रूरी था, बल्कि ये एक तरह का उनको डर खौफ दिलाना मकसूद था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। चुनांचे हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला जो यहूद के बड़े उलमा में से हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दौर में मुसलमान हुए, उनके बारे में आता है उन्होंने कुरान पाक की आयत सुनी तो अपने चेहरे पर हाथ फेरा कि कहीं मेरा चेहरा मस्ख तो नहीं हो गया, और फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया। तो जिनके दिलों में अल्लाह ने कुछ क्षमा रखी थी और जिनके दिल थोड़े डरने वाले थे अल्लाह से, तो उन्होंने ईमान कबूल भी किया। बहरहाल तो इसमें उनको धमकी दी गई, वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म हो कर के रहता है। यहाँ पर एक लतीफ़ा मौलाना मंजूर मंगल साहब की ज़बानी एक मैंने सुना था कि एक बहुत बड़ा वो था गैर बिदती पत्नी किसी की तरफ से कोई आलिम था गालिबन, और नाम उसका था अमरुल्लाह। तो हर आदमी के साथ मजाक करता था, बड़ी दिल लगी और लोगों को बड़ा परेशान करता था। तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के एक मरतबा हत्थे चढ़ गया। हज़रत ने कहा कि अगर आज मैंने इसको पानी ना पिलाया तो मेरा नाम भी अताउल्लाह नहीं। चुनांचे वो आया और उसने आकर के वही अपना रंग दिखाना शुरू किया कि मेरा नाम है अमरुल्लाह। हज़रत ने फरमाया कि तू मफ़ऊल है और मैं मफ़ऊल से बात नहीं करता। आप जानते हैं मफ़ऊल किसको कहते हैं। तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, लोग भी नाराज़ हुए कि हज़रत इसको मफ़ऊल कह रहे हैं, और हज़रत ने कहा मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम तो मफ़ऊल है, इस तरह कहा। अब जब सख्त नाराज़ गाली गलौज पर उतर आया तो कुरान पाक की हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी ने आयत पढ़ी, वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ये था हमारे अकाबिर का इल्म और थोड़ा मजाक करने का अंदाज़। जब उसने सुनी तब उसको पता चला कि आज तो शाह साहब के सामने मतलब ठुकाई हो गई, और ऐसे लोगों का इलाज हज़रत शाह साहब बहुत अच्छे अंदाज में कर दिया करते थे।
बहरहाल वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म जो है वो हो करके ही रहता है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के अंदर यानी पहले ईमान लाने का हुक्म दिया, तो ईमान असल है और ईमान के अपोजिट शिर्क है, कुफ्र है। ये दोनों गुनाह ऐसे हैं कि यहूद ये समझा करते थे सयुग़फ़रु लना, हमारी बख्शिश हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहूद और नसारा दोनों की ज़िंदगी के अंदर, बल्कि मुशरिकीन की ज़िंदगी के अंदर तो शिर्क था। हज़रत उज़ैर को कहते थे वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, ईसाई कहते थे वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। वजअलुल मलाइकत अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा, वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ऐलान कर दिया कि देखो शिर्क की बख्शिश नहीं है। याद रखिए कुफ्र का भी यही हाल है, चूँकि कुफ्र के बारे में अलग आयतें आई हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, ज़मीन भर कर के सोना भी दे तो भी उसकी बख्शिश नहीं है। तो जब शिर्क की बख्शिश नहीं, शिर्क का मतलब होता है किसी को पार्टनर करार देना, तो कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, तो उसकी तो बदरजे औला बख्शिश नहीं हो सकती। और बाद आयात में जैसे लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू के अंदर शिर्क और कुफ्र दोनों की एक साथ मजम्मत आई है। बहरहाल यहाँ पर शिर्क की मजम्मत अल्लाह ने बयान फरमाई। शिर्क चाहे वो ज़ात में हो चाहे सिफ़ात में हो, पैगंबर की शान और सिफ़ात के अंदर भी अल्लाह की सिफ़ात को मान लाना हाजिर नाजिर और मुश्किल कुशा हाजत रवा, इसीलिए मसला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, समझने की बात है भाई, गौर करना चाहिए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला इस बात को बिल्कुल नहीं बख्शेगा कि जो उसके साथ शरीक किया जाए उसको माफ़ करे। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देगा, चाहे वो कबीरा हो चाहे सगीरा। यहीं से मुअतज़िला के ऊपर रद्द हो गया। मुअतज़िला कहते हैं कि बग़ैर तौबा के कबीरा माफ़ हो ही नहीं सकता, बल्कि वो कहते हैं जिसके खाते में कबीरा गुनाह है अल्लाह को के ऊपर लाजिम है कि वो उसको सज़ा दे। हालांकि अल्लाह ने कहा मैं शिर्क के अलावा हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर सकता हूँ, बग़ैर तौबा के भी वो मेरी मर्ज़ी है। और अगर तौबा करे बंदा तो तौबा से तो शिर्क भी माफ़ हो जाता है। आगे फरमाया वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, वजह यह है कि जो शिर्क करता है वो अल्लाह पर बहतान बांधता है। शिर्क अल्लाह की गैरत का मामला है। जैसे किसी औरत से पूछो कि आपके भाई कितने के 2 भाई हैं, आपके बेटे कितने के 5 बेटे हैं, और आपके पोते कितने के 10 पोते हैं, सब चीज़, लेकिन उससे पूछो कि आपके खाविंद कितने हैं, तो औरत कहेगी मेरा खाविंद 1। अगर 1 के अलावा और खाविंद है तो इसका मतलब ये है कि औरत का करैक्टर सही नहीं है, चूँकि गैरत का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहान बनाया, खाने के लिए दांत दिए, देखने के लिए आँख दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सुनने के लिए कान दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, और पूरा 6 फीट का निज़ाम बना दिया और बड़ी बड़ी मशीनियाँ फिट कर दी। सब कुछ अल्लाह दे और फिर भी इस पेशानी को अल्लाह के गैर के सामने झुकाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बर्दाश्त नहीं है जनाब। इसलिए फरमाया कि शिर्क बड़ा ख़तरनाक गुनाह, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और नबी के बारे में फरमाया ला इन अशरकत ला यहबतन्ना अमलुक, नबी जी शिर्क आपने किया तो भी मामला गड़बड़ है। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। इसीलिए जब क़यामत के दिन अज़ाब होगा तो लोग कसमें खाएंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हमने कोई शिरक नहीं किया। लेकिन वहाँ पर जब फिर गवाहियों का सिलसिला चलेगा और अल्लाह ज़बान पर मोहर लगा देंगे और इंसान के आज़ा गवाही देंगे, अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। हाँ, इसलिए शिर्क से बहुत डरने की ज़रूरत है। न इबादत में आई, इसलिए रियाकारी को भी शिर्क कहा कि दिखलावे के लिए कोई अमल करना अल्लाह को पसंद नहीं। जाओ भाई चेहरे पर मार दो, उसी से ले ले बदला जिसको दिखलाने के लिए किया है। आगे फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा ख्याल करते हैं। याद रखिए पाकीज़गी क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है जो अपने आप को पाक साफ कर ले। क़द अफ़लहल मुमिनून, लेकिन
पाकी का दावा करना कि हम चूँ दीगरे नेस्त, मुझ जैसा कोई नहीं है, ये यहूद की तबीयत के अंदर ये बीमारी भी थी। वो कहा करते थे लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, जन्नत में सिर्फ यहूद और नसारा जाएंगे। अल्लाह ने कहा तिलका अमानियुहुम, ये तुम्हारी दिल खुशकुन बातें हैं, अगर तुम सच्चे हो फातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इस पर ज़रा कोई दलील पेश करो। इसी तरह यहूद कहते थे लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, और अगर गए तो चंद गिनती के रोज़। कभी कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के महबूब सेलेक्टेड बंदे हैं, नबियों की औलाद हैं, जहन्नम से हमारा क्या ताल्लुक। तो कुरान ने इसी को कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकीज़ा ख्याल मत करो। कौन पाकीज़ा है कौन नापाक, इसका फैसला अल्लाह करेगा। बहुत सारे हजरात तहदीस बिन नीमत का लफ्ज़, कि भाई मैं तहदीस बिन नीमत के तौर पर कह रहा हूँ, हालांकि मकसूद बड़ाई होती है, लेकिन लफ्ज़ का सहारा लेते हैं तहदीस बिन नीमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी चीज़ों को जानता है, चोरियाँ आँखों की और सीनों के राज जानता है सबको तू ए बेनियाज। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ये यहूद के अंदर बीमारी थी, हम ऐसे हैं, डबल पैसे हैं, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बड़ा था, दादा ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं। मम बत्ता बिही अमलु लम युसरा बिही नसबु, जिसको उसका अमल पिछाड़ देगा, उसका हसब नसब उसको आगे नहीं कर सकता। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तो हसब नसब को लिए बैठे रहे कि भाई मैं सैयद हूँ, पठान हूँ, मिर्ज़ा हूँ, चौधरी साहब हूँ, फ़ला हूँ और फ़ला है। कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जनाब जो मुत्तकी है अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बुलंद है। इसलिए फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को पाकीज़ा ख्याल करते हैं। ये ऊंच नीच का वायरस यहूदियों से ही हमारे यहाँ मुंतकिल हुआ है, समझे नहीं। ऊंच नीच भाई ये फला है, ये फला है, और हम बड़े हैं ये छोटे हैं, नहीं। इस्लाम कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वहाँ तो ये है कि ज़माने जाहिलियत की सारी रस्मों को अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अपने कदमों के नीचे रौंदने के लिए आया हूँ। ला फज़ल लिअरबिय्यिन वला लिअजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, सब आपस में भाई भाई। इसलिए फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ही पाकीज़ा करता है जिसको चाहे। वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर तागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तील, और आगे चल कर के एक लफ्ज़ आ रहा है नक़ीर, और एक लफ्ज़ आएगा सूरह फातिर के अंदर कितमीर, ये तीन लफ्ज़ हैं। फ़तील कहते हैं खजूर की गुठली के अंदर जो गहरा सा गड्ढा होता है, उसके अंदर एक धागा होता है बारीक सा रेशा, उसको कुरान की इस्तिलाह में, चूँकि कुरान अरबों के मुहावरे पर नाजिल हुआ है, इसलिए फरमाया कि उस धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, उसको फ़तील कहते हैं। और नक़ीर कहते हैं उस गुठली को की जो गहराई होती है उसके अंदर की, उस गुठली को नक़ीर कहते हैं। और पूरे खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा एक रेशा चढ़ा हुआ होता है, बहुत बारीक सा, उसको कितमीर कहते हैं। मा यमलिकून मिन कितमीर, वो सूरह फातिर में आएगा। तो कुरान चूँकि अरबों के मुहावरे पर नाजिल हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उन पर खजूर की गुठली के उस गड्ढे के अंदर जो बारीक सा रेशा होता है उसके बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देखो तो ज़रा कैसा झूठा इल्ज़ाम बांधते हैं अल्लाह पर। अल्लाह पर कैसा झूठ, अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते थे कि जैसे फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अपनी तरफ से घड़ते थे और नाम अल्लाह के खाते में लगा देते थे। तो उज़ैर को अल्लाह का बेटा बताना, ईसा को अल्लाह का बेटा बताना, ये कहते तो अल्लाह ने हमको कहा है। हालांकि सूरह माइदा के आखिरी रुकू को आप पढ़िए कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम से सवाल करेगा, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब।
पूरा रुकू आप पढ़िए, देखिए किस तरह एक एक पॉइंट समझने का है कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम से पूछेगा क्या तुमने कहा था कि मुझे भी खुदाई में शरीक ठहरा लो? कहेगा सुबहानक, आपकी ज़ात पाक है, ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल फरमाया उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलाल्लाहिल कज़िब, देखो तो ज़रा अल्लाह पर कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और यही काफ़ी है, यही गुनाह जो सरीह गुनाह है उनकी पकड़ के लिए यही गुनाह काफ़ी है। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना। तो ये तकरीबन एक रुकू यहाँ तक हो गया है, आगे भी यहूद की मजम्मत चलेगी। तो बहरहाल अहले किताब की जो कबाहतें हैं, शनाअतें हैं, उनकी चाहे वो कितमान हक़ हो, चाहे वो अंबिया की तौहीन हो, और चाहे वो तहरीफ हो लफ्ज़ी मानवी, और चाहे वो कलिमात को अपने मकाम से बदलना हो, और चाहे अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाना हो, चाहे शिर्क करना हो, ये सारी की सारी बातें वो हैं कि अल्लाह ताला एक मुसलमान को इन बातों से महफूज फरमाए। वरना जिस तरह उनके बड़े बड़े दावे थे, पिदरम सुल्तान बूद नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, अगर हम भी यही कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और बड़े बड़े दावे करते रहे और अमल से खाली रह गए, तो फिर जो हाल उनका था, डरना चाहिए कहीं वही हाल इस उम्मत का और हमारा ना हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन गुनाहों से महफूज फरमाए और सही सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला एक एक गुनाह को हमारी ज़िंदगी से खुरच करके निकाल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।